Good afternoon, my dear student. Welcome back in the English class, and I hope you all have been doing good at home and doing all the activities given by the teachers. Now, dear student, today we are going to start our chapter 6, that is how to climb trees. In my previous class, I gave you some information about Jim Corbett, the author of this story, and I hope you have made the paragraph and you have written it in the copy also. So dear student, let us start. What does this topic, how to climb trees, contain? Now, if it is visible on your screen, just look at it. Now let us go to read this box content. Till the beginning of this century, there were thick forests in the Kumaon and Garhwal hills where many tigers roamed freely. Jim Corbett was brought up in this region. Now, 100 साल पहले जो कुमाऊन और गारवल हिल्स में एकदम थिक फॉरेस्ट रहा करता था, जिस जगह टाइगर्स they had the time to move freely. वहाँ बहुत ज़्यादा शेर था, टाइगर था, बाघ, तो वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे फ्रीली. एंड दिस वॉज द रीज़न, यही क्षेत्र था जहाँ पे जिम कॉर्बेट आवर ऑथर ग्रीव अप, जहाँ पे वो बड़ा हुआ था. He loved mountains, forests and animals. He was also an excellent shooter. He killed many man-eaters and saved the lives of the countless people. Now, dear student, as you got the information about Jim Corbett, he is a nature-loving writer. He loved the nature, just like mountains, forests and animals, rivers, trees, and so on. He loved it very much. And on the other hand, he was very good at shooting also. He was a good hunter. He had killed many man-eaters, जो मांसाहारी जानवर उसको मारा. He had killed many of them to save the people आदमी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी को जिम कॉर्बेट ने बचाया था ये मैन ईटर्स से. मैन ईटर्स, यू मे से दैट इट इज़ अ टाइगर, लियोपार्ड, लायन एंड सो ऑन, those who feed on man, feed on meat, especially flesh eaters. But these flesh eaters animals become man eaters when they become old. अब old age में they cannot go for hunting, go for searching prey. So the easy way to get their prey, that is man. So ये जब जानवर बूढ़ा हो जाता है तब वो लोग दौड़ नहीं सकते, अपना शिकार को शिकार नहीं कर सकते और उन लोगों को जीना डिफ़िकल्ट हो जाता है. उस टाइम वो लोग मैन ईटर्स होता है, क्योंकि मैन आर इजीली कैप्चर्ड, आदमी को आसान तरीके से पकड़ सकता है. सो दे बिकम मैन ईटर्स. Why does Kumar Singh tell young Jim that besides being an excellent shooter, he should also know how to climb trees? Now, dear student, यहाँ पे कैरेक्टर्स में 3 कैरेक्टर्स है. एक राइटर जिम कॉर्बेट, कुंवर सिंह and Har Singh. And for the animal character, there is a tiger, as you all know. Now, यहाँ पे कुंवर सिंह ने जिम कॉर्बेट को बोलता है, यंग जिम कॉर्बेट को, कि तुम अच्छा शिकारी होने के साथ साथ तुम्हें पेड़ में चढ़ना भी सीखना है. ये बात क्यों कहते हैं जिम कॉर्बेट को कुंवर सिंह ने? इट इज़ अ वेरी गुड नैरेटेड स्टोरी. द स्टोरी इज़ narrated by कुंवर सिंह टू जिम कॉर्बेट. यहाँ पे कुंवर सिंह ने जिम कॉर्बेट को कहा गया स्टोरी है ये. लेट अस read now.
Now let us go paragraph by paragraph. Kuwar Singh was the first to visit me the day I was given my first gun. He came early, and as with great pride I put the old double-barreled gun into high hands. He never, even by the flicker of an eyelid, showed that he had seen the gaping split in the right barrel. Now, dear student, in the olden times, the occupation of man was mainly hunting. So, जब वो लोग थोड़ा बड़ा हो जाता था उस टाइम उन लोगों को गन दिया जाता था, so that it is the sign that tells you that he has grown up. So यहाँ पर भी वैसा ही था. जिम कॉर्बेट को भी यहाँ पे फर्स्ट गन दिया गया था. तो उस टाइम पे उसको सबसे पहले भेंटने वाला, मिलने आने वाला व्यक्ति कुंवर सिंह था. और जब वो कुंवर सिंह उसको मिलने आया तो उस टाइम जिम कॉर्बेट ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, एकदम घमंड हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में गन है. तो इसी कारण से उसने अपना गन उठा के जो डबल बैरल था, 2 नाला गन था, उसने उठा के कुंवर सिंह के ऊपर एम करता है. लेकिन कुंवर सिंह ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट हंटर, ही वॉज अ गुड एट शूटिंग. सो उसने एक ही झटके में क्या किया, उसका जो एम करने का बैलेंस था उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया. उसने कहा कि उसका राइट बैरल जो राइट नाला था वो सही बैलेंस में नहीं है. लेकिन उसने उसी टाइम क्या कहा दूसरा भी, ओनली द गुड क्वालिटीज़ ऑफ लेफ्ट बैरल वेयर कमेंटेड ऑन. लेकिन लेफ्ट बैरल ठीक है ऐसे करके उसने कमेंट किया. एंड देन लेइंग द गन असाइड ही टर्न टू मी एंड ग्लैडेंड माई 8-year-old हार्ट एंड मेड मी प्राउड ऑफ माई पोजेसन बाय सेइंग. ना यहाँ पे उसी टाइम उसने गन को साइड में रखते हुए उसको वाह करने लगा. जिम कॉर्बेट को वाह करने लगा कुंवर सिंह ने. और वाह करते वक्त उसने क्या कहा, यू आर नाउ नो लॉन्गर अ बॉय बट अ मैन एंड विथ दिस गुड गन यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक इन द जंगल्स एंड नेवर बी अफ्रेड. अब यहाँ पे वाह करते हुए उसको सम्मान करते हुए ये कहा, अरे बाप अब तुम अब कोई बच्चा नहीं रहा, बॉय नहीं रहा, तुम अब एक पर्सन मैन एडल्ट हो गए हो विद दिस गुड गन. अब ये गुड गन के साथ तुम कहीं भी जा सकते हो इन द फॉरेस्ट, डर माने बिना तुम जंगल में ये गन लेके तुम जा सकते हो. Provided you learn how to climb trees, I will now tell you a story to show how necessary it is for us who shoot in the jungles to know how to climb trees. यहाँ पे उसने ये भी कहा कि you need to learn climbing also. ट्री क्लाइंब करना बहुत ज़रूरी है ये, ऐसे करके उसने कुंवर सिंह ने जिम कॉर्बेट को कहा. अब यहाँ पे ये कहने जो कह रहा था कुंवर सिंह जिम कॉर्बेट को, तुम्हें पेड़ चढ़ना भी सीखना है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने एक स्टोरी कहना शुरू कर दिया, वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ टू क्लाइंब द ट्रीज. नाउ लेट अस मूव. Harsing and I went to school shoot one day last April. We had started when the stars were peeling, and though we combed the jungle, we found nothing to shoot. Towards evening, we started for home. Now, उसने शुरू किया अपना स्टोरी जिसमें हरसिंह भी है. हरसिंह और कुंवर सिंह लास्ट अप्रैल समय में वो लोग सुबह जल्दी ही घर से निकला शिकार के लिए, और उन लोग ने पूरा जंगल को छान मारा, लेकिन दे वेर एम्प्टी हैंडेड. उन लोगों को कोई शूटिंग करने के लिए प्रे नहीं मिल रहा था एनिमल्स. इसलिए जब सांझ हो रहा था, इवनिंग आ रहा था, तो वो दे वेर रिटर्निंग बैक टू होम. नाउ लेट अस रीड मोर. We took a sandy nulla that ran through dense scrub and thorn bamboo jungle. अब यहाँ पे संडे नुल्ला मीन्स नाला,
अथवा यू कैन से वैली ऑल्सो। सैंडी का मतलब होता है रेतीला, रेत आप लोग कहते हैं, बालू रेत। रेतीला एक नाला से गुजरते हुए वो लोग जा रहे थे, जिसके बीच में आता था डेंस स्क्रब एंड थॉर्न बैम्बो जंगल। रैन थ्रू डेंस स्क्रब एंड थॉर्न बैम्बो जंगल। स्क्रब का मतलब होता है स्क्रब, ये एरिया है जहाँ पे एकदम लेस रेनफॉल होता है, स्क्रब लैंड कहता है उसको, स्क्रब एरिया, जहाँ पे श्रब्स का मतलब होता है स्मॉल ट्रीज, बुशेस आर फाउंड, दे आर थॉर्नी, वो कटीला होता है, वो उसमें काटा जाता होता है। थॉर्न बैम्बो जंगल, बैम्बो तो आप लोगों को मालूम ही है, बांस को कहता है बैम्बो। सो थॉर्न बैम्बो जंगल मतलब आप लोग बांस के झाड़ में गया होगा कि वहाँ पे कैसे वहाँ पे नोकीला चीज़ें मिलता है। सो दे वर पासिंग इन दिस टाइप ऑफ एरिया। एज वी वेंट अलोंग, अ टाइगर केम आउट इन द नुला एंड स्टूड लुकिंग एट अस फॉर अ लॉन्ग minute. The tiger stared and then it turned and went back the way it had come. Now what happened is that when they were passing the नुला पे पास कर रहा था, उस टाइम पे वो अकस्मात क्या हुआ, वहाँ पे टाइगर निकला, केम आउट नुला से वहाँ टाइगर निकला और वो एकदम अड़िग होके, एकदम खड़ा होके उन लोगों को देख रहा था। थोड़ी देर देखा, a long minute देखा, फॉर अ लॉन्ग मिनट उन लोग वो वहाँ पे टाइगर उन लोगों को देखता रहा। उसके बाद में फिर क्या किया, वो वही रास्ते से वो रिटर्न हो गया। नाउ लेट अस सी मोर। वी टूक नुला बैक वे इट कम। We continued on our way when the tiger again came out into the nulla, and this time as it stood and looked at us, it was growling and twitching its tail. Now हम लोग जब ये टाइगर वापस चला गया अपना ही रास्ता, तो हम लोग अपना यात्रा, अपना जर्नी कंटिन्यू किया। लेकिन व्हाट हैपन इज़ दैट टाइगर अगेन केम इनटू द नुला में टाइगर फिर दिखाई दिया for the second time and it stood and looked at us. वो टाइगर वहीं पे खड़े होकर देखना शुरू किया, लेकिन इस टाइम पे ग्रोलिंग, टाइगर गुर्राहट में था, गुर्राहट कर रहा था जैसे टाइगर साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड ट्विचिंग इट्स टेल का मतलब होता है टेल को मूव कर रहा था अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। नाउ लेट अस से we again stood quite still and after a time the tiger quietened down and left the nulla. हम लोग इस समय भी एकदम शांत रहा, हल्ला नहीं किया, तो टाइगर भी थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, नुला को छोड़ के वो चला गया। A little later a number of jungle fowl rose cackling out of the dense scrub, evidently disturbed by the tiger, and one of them came and sat on the tree right in front of us. Now यहाँ पे जब वो टाइगर छोड़ के चला गया, वो सीधा स्क्रबी लैंड में चला गया था, और जहाँ पे श्रब्स एंड बुशेस था उसके अंदर घुस गया था। ये घुसने के टाइम में क्या हुआ, वहाँ से फॉल का मतलब होता है बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स, वो लोग वहाँ से उड़ के बाहर निकला। एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट नॉइज जस्ट लाइक कैकलिंग ये साउंड है बर्ड्स का। वो लोग बाहर उड़ के बाहर निकल रहा था। इविडेंटली डिस्टर्ब बाय द टाइगर एंड वन ऑफ देम केम एंड सैट ऑन अ ट्री राइटली इन फ्रंट ऑफ अस। ये उन लोग क्यों उड़ के बाहर निकल रहा था, क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्ब हुआ था, टाइगर ने डिस्टर्ब किया था, इसीलिए वो लोग उड़ के आया। और एक पंछी, one of them, one bird came and sat on the tree, नज़दीक के रुख में आके बैठा था, जो नज़दीक के पेड़ में आके बैठा था, जो पेड़ उन लोगों के सामने था। यहाँ पे कुंवर सिंह और हर सिंह के सामने वाला पेड़ में आके वो पंछी बैठा।
As the bird alighted on a branch in full view of us, Harsing said he would shoot in and so avoid going home empty-handed. He added that the shot would frighten away the tiger, and before I could stop him, he had fired. Now यहाँ पे हरसिंह ने अब जब ये पंछी बर्ड आके ब्रांचेस में बैठा, वो जो पेड़ के ब्रांच में आके बैठा, तो उस टाइम वो बर्ड विजिबल था। यहाँ पे कुंवर सिंह और हरसिंह दोनों वो बर्ड को देख रहा था। और हरसिंह ने क्या किया, मुझे हम लोग घर खाली हाथ नहीं जाना है, ये बर्ड को मारूंगा मैं और इसको मैं घर ले जाऊंगा। आई वोंट गो होम एम्प्टी हैंडेड। लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह को पता था अगर वहाँ पे गन फायरिंग किया तो टाइगर को डिस्टर्ब होगा। सो कुंवर सिंह को हरसिंह को रोकना था, लेकिन क्या करे, ये कहने से पहले ही हरसिंह ने क्या किया, शॉट, he fired the gun, he shot the bird. Now let us move what happened. Next second there was a terrifying roar as the tiger came towards us, crashing through broken branches. उसके बाद आवाज़ जब फायरिंग का आवाज़ आया तो उस टाइम सेकेंड टाइम जो उसके बाद तो क्या हुआ, एकदम वहाँ पे भयानक गुर्राहट, टेरिफाइंग रोर ऑफ अ टाइगर सुनाई दिया बाघ का, एंड द टाइगर वाज कमिंग टूवर्ड्स देम। कुंवर सिंह और हरसिंह के ऊपर आ रहा था। वो इतना गुस्से में आ रहा था कि वो ब्रांचेस जो लकड़ियाँ था इधर उधर छोटा सब उसको ब्रोकन तोड़ते हुए निकल रहा था। एट दिस स्पॉट देयर वर सम रोनी ट्रीज growing on the edge of the nulla, and I dashed towards one while Harsing dashed towards another. जब हम लोग ने ये दृश्य देखा कि टाइगर बहुत गुस्से में आ रहा है, तो जो नुला था, नुला के अंत में रूनी ट्रीज, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, वहाँ पे एक पेड़ रूनी पेड़ था, तो हम लोग उस पेड़ के तरफ दौड़ना शुरू किया। मैं एक तरफ कुंवर सिंह एक तरफ चला गया और हरसिंह एक तरफ। Let us see what happens to them. My tree was nearer the tiger, but before it arrived, I had climbed out of reach. Harsing had not learned to climb trees when he was a boy, as I had. Now यहाँ पे I किसको कह रहा है? यहाँ पे आई और माई कुंवर सिंह को कह रहा है। यहाँ पे पोइट को नहीं कह रहा है, ये कुंवर सिंह यहाँ पे कथा सुना रहा है, इंसिडेंट सुना रहा है। किसको? जिम कॉर्बेट को, ऑथर को कथा सुना रहा है। इट इज़ अ नैरेटेड स्टोरी, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे माई जो है, माई प्रोनाउन यूज़ किया गया है, वो प्रोनाउन राइटर के लिए नहीं है, जिम कॉर्बेट के लिए नहीं है, ना ही तो हरसिंह के लिए, लेकिन ये कथा सुनाने वाला कुंवर सिंह के लिए है। यहाँ पे आई भी उसी के लिए है। सो कुंवर सिंह का पेड़ थोड़ा नज़दीक था और वो वहाँ पे पहुँच के टाइगर का रिच से ऊपर वो पेड़ में चढ़ गया। लेकिन अलास व्हाट हैपेंड, हरसिंह could not climb the trees because he had not learned in the childhood. बच्चे में उसने पेड़ चढ़ना ही सीखा नहीं था, so he could not climb the tree. लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह तो बच्चे में ही पेड़ चढ़ना सीखा था। So let us see what happened. He was still standing. Let us see what happens. He was still standing on the ground, reaching up and trying to grab a branch when the tiger, after leaving me, sprang at him. Now यहाँ पे टाइगर मेरे पीछे था, लेकिन क्या किया, मुझे तो पेड़ चढ़ना आता था, इसीलिए मैं झटपट पेड़ में चढ़ा और टाइगर का रीच से ऊपर चला गया। लेकिन पोर हरसिंह, उसने पेड़ चढ़ना सीखा ही नहीं था। सो ही वॉज जंपिंग, अथवा वो ट्राई कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। सो क्या हुआ, जब टाइगर को पता चला कि मुझे वो पहुंच नहीं पाएगा, तो टाइगर टर्न घूम के अब हरसिंह के ऊपर जाने लगा।
उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया. स्प्रैंग एट हिम. हर्षिंग वॉज स्क्रीमिंग एंड द टाइगर वॉज रोरिंग. हर्षिंग चिल्ला रहा था दर्द से अथवा डर से, लेकिन टाइगर क्या रहा था, गुर्रा रहा था. वो बहुत गुस्से में थे टाइगर. I had taken my gun into the tree with me, so now I fired the gun off into the air. लेकिन luckily what happened, कुंवर सिंह ने अपने साथ गन ऊपर पेड़ में ले गया था. जब ये इंसिडेंट ये दृश्य देखा तो उसने गन एयर में, हवा में ये फायरिंग किया. On hearing the shot so close to it, the tiger bounded away and Harsing collapsed at the foot of the tree. Now जब बंदूक का फायरिंग टाइगर ने नज़दीक में सुना, अपने नज़दीक में, तो वो भी डर गया और उसने हर्षिंग को छोड़ के चला गया. एंड द हर्षिंग कोलैप्स एट द फुट ऑफ द ट्री. कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना अथवा वहाँ पेड़ के नीचे गिर गया. अवे एंड हर्षिंग कोलैप्स एट द फुट ऑफ द ट्री. When the tiger had been gone some time, I climbed down very silently and went to Harsing. Now क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में मैंने इंतज़ार किया जब तक टाइगर दूर नहीं गया हो. तो उसके बाद में मैं भी थोड़ा पेड़ से नीचे उतरा एंड साइलेंटली, एकदम आवाज़ निकाले बिना वो हर्षिंग के पास चला गया. Now dear student, we'll be reading this much for today. As you all know that all the lesson we are reading partially, just like in part A and part B, because the lessons are too much lengthy. So dear student, today we will be reading up to here and we will be continuing it tomorrow in part B. So now dear student, up to here I have underlined the lots of difficult words. Try to learn the spellings and try to copy down them in your notebook. Let us stop here today and let us meet in our next class. Have a nice time. Thank you.